Hello and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve, my dear educators. Today I'm going to share with you an amazing ICT tool to create worksheets. My lovely educators, as I've been sharing with you, number of tech tools, ICT tools, AI tools, and so-called genies, Aladdin ka chirag, you all have got. एंड उस अलादीन का चिराग में से अलग अलग जीनीस जो है वो निकली जाएंगी. Mentoring the mentors is itself Aladdin ka chirag for you people, because whatever you ask for, you'll be able to get all the details at our platform. So today's EdTech tool for you is, here you go. Yes, my lovely educators, this is a tool that you all can use to create wonderful, amazing worksheets. Either you can print the worksheets, or if you want, you can just make the worksheets interactive, as we have been doing with the live worksheets, right? So my lovely educators, what you have to do is you have to go to worksheet zone, like I am writing here, worksheet zone, right? And I'll be sharing the link in the description box below. Most of you keep on asking like where we have to go, कैसे डाउनलोड करेंगे हम, हमें कैसे पता चलेगा. तो आप प्लीज जो भी मेरी वीडियो चेक करते हो उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें. आई शेयर ऑल द डिटेल्स, all the links over there, right? Sometimes I share the document links also. So my lovely educators, when you go to worksheet zone, you will land on this sort of page, right, where there are a few options. Here on the left hand side, some images are there, right? So what you'll have to do first of all is you need to log in. Okay, login is very important. Then only you'll be able to save your worksheets. You will be able to create, edit, right? So now I have clicked on login, right? So now I need to log in. Okay, I have logged in with my Google account, and here you go. So I have logged in, right? So my dear educators, now I have to click on create worksheets or make interactive worksheets. You want to create interactive worksheets, or you want to change your previously made worksheets into interactive one with the students. They'll be able to work on the worksheet itself through the link that you will be sharing with them through mobile or maybe any other kind of device that they have. So first of all, let us go to create worksheet. So my lovely educators, I'm just sharing with you this tool. If you want to learn it at your own pace, you can either watch my video. Otherwise, also there are tutorials given, right? You can understand through the tutorials also. Like tutorial is there, written tutorial, video tutorial. And for making it interactive worksheet, you again have tutorial written as well as video tutorial. So that's up to you how you want to go ahead with that. So let's get started. So here you go. So this is the page. Now, my lovely educators, first of all, let us understand the different links, different icons that are given over here. If I click on the first one, that is the templates, I have clicked here. Now I'll be able to get different trending templates for me. Otherwise, I can go here also. I can select different templates for pre-kindergarten, coloring pages, addition, mathematics, worksheets, numbers, reading, comprehension. So already a few templates are available with us, right? So we can click on any one. Some are yet to be uploaded. You can explore as per your needs. So these are the coloring pages. You can, whenever you click, add a new page. See? So this is a worksheet that I have clicked and now it is appearing over here, right? So you can print it as it is also, you can save it, you can download it, right? I can just remove these pages that I've already created. Okay, so
here is the page that I have done. Okay, now you can add more pages into your worksheet too. You want to make some changes, you want to edit the text, you want to add on your text, you can do that. Okay, and next one is a module. If you go to module, you have got these different modules given over here: handwriting, subtraction, division, crossword, addition, multiplication, word search. So all the main arithmetic operations are given for the students. You can create those worksheets. You can give handwriting worksheets to the little ones. जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास हैंडराइटिंग की वर्कशीट आ जाएगी. चलिए हम एक काम करते हैं, इसमें और वर्कशीट्स ऐड करते चले जाते हैं. राइट, आई वांट ऐड पेज, और यहाँ पर मैं हैंडराइटिंग की वर्कशीट्स को क्रिएट करना चाहती हूँ. आई वांट टू गिव डॉट्स टू माय चिल्ड्रन. राइट, तो इस पे मैंने लिखना क्या है. आई वांट कि बच्चे केजी में एलकेजी में आते हैं, वांट देम टू लर्न द स्पेलिंग ऑफ देयर नेम. सपोज आई एम राइटिंग हियर माय नेम and I want them to write it time and again. So I have written Meenakshi Narula, and how many times I gonna give? I want to give a whole page. Like, you can select the number of the lines. So your worksheet is ready. So whatever you want to give, you want them to trace and write it time and again. You can give any letters also, right? So I mean, your all sound words, whatever you want to share with your students, you can create your own worksheet within just seconds, right? So this is handwriting. You can create. Okay, now let's add another page. So I want to do some word search. Let us try it. Now for word search, there are a few letters given, right? Now I have to write the what words I want my children to find. Suppose it's Earth Day, I want to give the words related to Earth Day. If it is Health Day, I want to give related to Health Day. I want to check whether they are able to find all the vocabulary words related to a particular theme. So suppose I am giving them some words related to water cycle, because I have taught water cycle in the class, right? So I'm writing here, oh, water cycle. Okay. And now I'm writing here evaporation, condensation, precipitation. So I have written these words. Now, what I have to do is, I have to see number of letters down. Now, I want to say show the answer. Means the words are written over here. Okay, these 4 I have given. You can add as many as you want, and show the answer means students, they have to find these from here. If you want to give these to the little ones, find this. You can give the clues also. Otherwise, you can give without that also. And if you want to check for yourself, आपको भी नहीं पता कि कहाँ पर है, you also have to find it. Show the answer in the grid. See, you will be able to find. अब आपको ये लग रहा है कि यहाँ पर आ रहे हैं वाटर साइकिल, और वो सीधे सारे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, एंड यू वांट टू चेंज इट. आप इसको चेंज करना चाहते हैं, इसी फॉर्म में नहीं देना चाहते, तो स्क्रैम्बल करेंगे, एंड आपको जिस फॉर्म में बच्चों को देना है, तो वो उसकी फॉर्म में यू कैन चेंज द प्लेस ऑल्सो. सी कि आपको यहाँ देना है, और यू वांट टू ऐड मोर वर्ड्स टू. चलिए हम इसमें एक और वर्ड कुछ और ऐड करके देखते हैं. सपोज एक छोटा सा कोई वर्ड रेन ऐड कर देते हैं हम. ठीक है, now let's see. See, it has been changed. इस फॉर्म में यहाँ पे रेन हमारा और ऐड हो गया. तो अकॉर्डिंगली यू कैन प्रिंट इट एंड शेयर इट विद योर स्टूडेंट्स, राइट? सो ऑब्वियसली आप इसको हटाएंगे ना पहले. शो द आंसर, देन ओनली यू विल बी गिविंग टू योर स्टूडेंट्स, राइट? अभी आपके मन में बहुत सवाल होंगे, स्कूल का नेम ऐड करना है, बाकी इंस्ट्रक्शंस ऐड करनी है, कहाँ ऐड करेंगे. देखिए हमारे पास और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, एंड वन बाय वन वी शैल डिस्कस देम ऑल. अच्छा, अब इसके बाद हम आ जाते हैं एलिमेंट के ऊपर. मॉड्यूल्स आपको मैंने बता दिए, उसमें आप जो भी मॉड्यूल की वर्कशीट बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं. एलिमेंट्स आ गए. अब इसमें क्या ऐड करना चाहते हैं आप? इसमें मैं इसमें वाटर से रिलेटेड कुछ पिक्चर डालना चाहती हूँ, अगर इसमें अवेलेबल है. यस, राइट. तो मैंने यहाँ पर ये पिक्चर इसमें डालना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू ऐड to give some nice look. Maybe I can find some another picture also if it is there. Okay, maybe I can talk about save water. मैं हो सकता है इस पिक्चर को डालना चाह रही हूँ. ठीक है, maybe I want this picture also.
I'm just randomly selecting, right? तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए आई हैव एडेड। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दूं। लेट मी ड्रैग इट बिट डाउन बिकॉज यहाँ पर मुझे स्कूल का कोई लोगो नेम बच्चों को लिखने के लिए कोई स्पेस चाहिए, तो मैंने वो स्पेस क्रिएट कर दिया। मेरी वर्कशीट थोड़ी अच्छी लग रही है पर और भी बेटर हो सकती है, राइट? चलिए, एलिमेंट्स हमने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं आ रही हूँ शेप्स के ऊपर। अगर मुझे कोई शेप्स इसमें ड्रॉ करनी है तो मैं वो शेप भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकती हूँ। सपोज मैंने ये शेप ड्रॉ किया है, दिस वन, ठीक है। मैं इसमें बच्चों को उनके नाम वगैरह लिखने के लिए स्पेस देना चाहती हूँ, तो आई हैव एडेड अ रेक्टेंगल ओवर हियर, राइट? अब इसमें मैं इसका कलर चेंज कर सकती हूँ जो भी मैं चाहती हूँ। मैं इसको व्हाइट करना चाहती हूँ, मैं इसको रेड करना चाहती हूँ। व्हाटएवर आई वांट, आई कैन डू इट, ओके, एज पर माय चॉइस। मैं इसमें थोड़ा सा, सपोज मैंने यहाँ पर ब्लूइश कलर कर दिया क्योंकि ये वाटर से रिलेटेड है, तो आई वांट टू मेक इट ओके। चलो, कोई भी हमने इसमें कलर ले लिया, राइट? तो मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। और जस्ट टू शो यू कि किस तरीके से विल बी एबल टू ऐड डिफरेंट शेप्स। ओके, नंबर ऑफ शेप्स आर अवेलेबल हियर, यू कैन यूज देम ऑल, कॉल आउट्स आर आल्सो देयर। अभी अपलोड का एक ऑप्शन है। अपलोड इज लाइक दैट, मुझे यहाँ पर कोई फाइल अपलोड करनी है, मुझे यहाँ पर कोई इमेज अपलोड करनी है। चलिए, मैं अपने स्कूल का ही लोगो अगर अपलोड करके देखती हूँ। लेट मी सी इफ आई कैन डू दैट। चलिए, ये मेरे स्कूल का लोगो है। मुझे ये बच्चों को देना है, यहाँ पर जो वर्कशीट बनानी है मुझे इसमें ये लोगो लगाना है, ठीक है। अभी मेरा लोगो लगा दिया और इसके ऊपर अब चलिए टेक्स्ट की बारी आ गई, ठीक है। टेक्स्ट में मुझे हेडिंग करना है या सब हेडिंग करना है, जिस साइज का मुझे टेक्स्ट चाहिए मैं उसमें कर दूंगी। चलिए, मुझे बहुत ज्यादा स्पेस नहीं, तो ऐड अ हेडिंग मैं यहाँ पर लिख रही हूँ और यहाँ पर मैं अपने स्कूल का नाम लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये मैंने स्कूल का नाम लिखा है, थोड़ा ज्यादा बड़ा फॉन्ट हो गया है। व्हाट विल आई डू इज, मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से मैं इसका जो फॉन्ट का साइज है, चलिए इसको रिड्यूस कर देती हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक लाइन में लाने के लिए लेट मी ड्रैग इट। तो ये मैंने स्कूल का नाम लिख दिया है। अब इसके नीचे मैं स्टूडेंट्स के नेम के लिए या अपने सब्जेक्ट के लिए, क्लास के लिए, रोल नंबर के लिए जो भी मैंने ऐड करना है, मैं यहाँ से डिफरेंट हेडिंग डिफरेंट साइज चूज करके आई विल बी एबल टू राइट इट। तो मेरा ये वर्कशीट का एक फॉर्मेट रेडी हो गया। कैन आई डू मोर? लेट मी गो टू फ्रेम्स नाउ, ठीक है। तो यहाँ पर अब ट्रेंडिंग फ्रेम्स तो सामने दिखा रहा है कि कौन सा है। लेट मी सी कि मेरा ब्लू कलर का कोई फ्रेम अगर मेरे पास जेल करता है तो आई कैन गो अहेड विद दैट। तो ये मैंने एक वर्कशीट का फ्रेम ऐड कर दिया इसमें, राइट? इट्स अप टू मी, लाइक मेरे को जो अच्छा लगे मैं वो फ्रेम इसमें ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। सी, सो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली इसमें फ्रेम्स ऐड कर सकते हैं। तो आपको लगाना है, इट्स ऑल अप टू यू कि कैसे आप करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, अभी अगर मुझे फ्रेम नहीं लगाना है, दैट्स अप टू मी। और अभी मैं जा रही हूँ यहाँ पर बैकग्राउंड्स के ऊपर। आई हैव गॉट सम ट्रेंडिंग बैकग्राउंड्स ऑल्सो, ओके। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू, आपकी वर्कशीट के लिए कौन सा आपको सूट करता है बैकग्राउंड। अगर आप लगाना है, इट्स योर चॉइस, नहीं लगाना है तो इफ आई गो हेड विद दिस, तो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, आई कैन गो हेड विद दिस बैकग्राउंड ऑल्सो। ऑब्वियसली हम कलर प्रिंट आउट नहीं देते, बट इफ यू वांट शेयर ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, आप बच्चों को मेल करना चाहते हैं तो थोड़ा सा लुक अच्छा आता है कलरफुल में। कलर्स आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, राइट? तो मैं यहाँ पर वो कर सकती हूँ। अगर मुझे ये शेप हटानी है, मुझे नहीं अच्छी लग रही है, तो आई कैन डिलीट दिस शेप, ठीक है। और मैं इसी बैकग्राउंड के ऊपर ही अपने स्कूल का नाम और जो इंस्ट्रक्शंस हैं बच्चों को, वो लिखकर यहाँ पर उनके नेम एंड ऑल दे दूंगी, एंड इट लुक्स बेटर देन यूजिंग अ शेप। तो दैट्स अप टू यू। आपका कोई हेलोवीन आ रहा है, आप, मैं जस्ट ऐसे रैंडमली यूज कर रही हूँ, सी आपको ऐसी बैकड्रॉप यूज करना है, राइट? वट एवर, आई मीन यू कैन चूज एनी काइंड ऑफ बैकग्राउंड। बैक टू स्कूल की एक्टिविटीज करानी है, आपने कुछ लिखने के लिए देना है, ठीक है, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दैट, राइट? तो आप इसमें एक नया पेज ऐड करके उसमें आप देख लीजिए कि किस तरीके से आपको ये लुक आएगा। आपने यहाँ पे कुछ
you have want to give your students to write something about any kind of sort of animals, और उससे related save the animal, life on land, life underwater, उससे related कुछ creative writing देना चाहते हैं, उससे related आप picture से बच्चों को ये ऐसी sheets creative बनाकर दे सकते हैं. So I hope this is very interesting and easy for you people to do, right? Isn't it? See, maths की worksheet templates आपके पास हैं, so you can use it as per your needs. So I hope I have shared now. I have talked about all this. चलिए पर हम दोबारा मॉड्यूल्स पर जाते हैं. यहाँ पर एक मैं नई शीट इसमें ऐड कर रही हूँ, एंड आई वांट टू गिव समथिंग. आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ मैं. सी, वर्ड सर्च दिखा दिया मैंने, हैंड राइटिंग दिखा दिया. आई एम गोइंग टू एडिशन, राइट. अब ये देखिए, एडिशन का मेरे पास एक टेम्पलेट्स ये आया है, राइट. तो मुझे अब इसमें, मुझे इस फॉर्म में चाहिए, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में मेरे को एडिशन इस तरीके से देना है बच्चों को. बड़े बच्चे हो गए हैं या छोटे बच्चे हैं, मुझे उनको इस फॉर्म में देना है. आई कैन गो हैड विद दैट. इसके बाद नंबर ऑफ डिजिट्स को भी आप चेक कर सकते हैं. यू वांट टू इंक्रीज इट, 3 डिजिट्स का देना चाहते हो, यू वांट टू गो अहेड विद 4 डिजिट्स, दैट इज रियली अप टू यू. सिंगल डिजिट का देना चाहते हैं, 2 डिजिट्स का देना चाहते हैं, 3 का देना चाहते हैं, 4 का देना चाहते हैं. तो उसी वर्कशीट्स को आप देखिए कितनी क्विकली आपको अपनी आप वर्कशीट्स बनाएंगे तो कितनी देर लगेगी आपको नंबर्स ऐड करने में. यहाँ पे क्विकली यू विल बी एबल टू डू इट एंड कैन गिव इट टू योर स्टूडेंट्स फॉर प्रैक्टिस, राइट. अब इसकी रीग्रुपिंग करना चाहते हैं आप, टेंस के कॉलम में करना चाहते हैं, ओके. इस कॉलम में करना चाहते हैं रीग्रुपिंग, यू वांट टू ग्रुप इट अकॉर्डिंगली, राइट. सो यू कैन गो अहेड विद दैट, दैट्स अप टू यू हाउ यू वांना डू दैट, ओके. सो किस तरीके से आप इसको करना चाहते हैं. तो आप इसको आगे स्क्रैम्बल करना चाहते हैं, शफल करना चाहते हैं, यू कैन शफल इट. आपको नहीं पसंद है, आप किसी दूसरे तरीके से करना चाहते हैं, यू कैन डू इट. सो just in seconds you are able to make the worksheets. So I hope you have liked this maths also. इसको आप एडिशन का किया है, आप लाइकवाइज मल्टीप्लिकेशन या चलिए डिवीजन तैयार करके हम देखते हैं. न्यू पेज एक ऐड करते हैं हम इसमें. तो यू वांट टू टीच डिवीजन टू योर स्टूडेंट्स. अब इसमें अगेन डिवीजन के आपके पास जब सम आ गए हैं, तो इसमें आपको क्या है, चेंजेस करनी है. अगेन आपको डिजिट्स इसमें यू आर गोइंग टू इंक्रीज. आपको बड़े बच्चों को देना है, मोर नंबर सबको चाहिए. छोटे बच्चों को टू स्टार्ट विद सिंगल डिजिट के साथ करना है, उसके साथ भी कर सकते हैं, राइट. लेट्स सी एडवांस्ड ऑप्शन में क्या है, यू कैन इवन सिलेक्ट कि मिनिमम नंबर क्या आए, मैक्सिमम नंबर क्या आए. ये आप सेम एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, सब्ट्रैक्शन में, सब जगह पर आप चूज कर सकते हो. बिकॉज यू सी आपके छोटे बच्चे हैं, उनको अपने 100 तक काउंटिंग सिखाए, आप 99 के ऊपर नहीं जाना चाहते हैं. बड़े बच्चे हैं, आप और सिलेक्ट करना चाहते हैं. तो दैट इज रियली अप टू यू कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं, ओके. सो दैट विल गिव यू a wonderful idea, wonderful opportunity to use your talent and save your time. These all are the time saving tips, right? चलिए अब एक क्रॉसवर्ड बना के देख लेते हैं. Add new page, right? मैं डिलीट नहीं कर रही बाकी पेजेस को टू सेव टाइम, आई एम जस्ट एडिंग न्यू पेजेस. अब मुझे क्रॉसवर्ड बनाना है, राइट. क्रॉसवर्ड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक तो करेक्ट आंसर चाहिए, एक आपको हिंट चाहिए, और उससे आपका जो क्रॉसवर्ड है वो बनता चला जाएगा, एक क्रॉस में या डाउन में. सो दिस इज हाउ यू कैन गो. इफ यू वांट टू गिव लेटर हिंट्स, यू कैन गिव हिंट्स आल्सो. चलिए एक ट्राई करके देखते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे टू सेव अवर टाइम. सपोज हम इसमें रेंडमली कोई भी अगर हम कुछ क्रॉसवर्ड बनाना है, तो लेट मी गिव सम एग्जांपल्स, राइट. चलिए, करेक्ट आंसर एंड उसका हिंट देंगे. करेक्ट आंसर इज लाइक दैट, इफ सपोज मैंने यहाँ आउल लिखा है, मैंने यहाँ नॉक्टर्नल लिखा है, ठीक है. सो ओके, नॉक्टर्नल आउल. अभी मुझे इसमें और ऐड करना है. करेक्ट आंसर में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, चलिए मैं यहाँ पे डॉग लिख रही हूँ. पेट एंड ह्यूमंस फ्रेंड, राइट. तो ये हमने इसमें ऐड कर दिया. फिर देखिए ऐसे क्रॉसवर्ड बनता चला जा रहा है, नीचे क्रॉस एंड डाउन आपके पास ऑलरेडी कुछ ऑप्शन आते चले जा रही हैं. एक ऑप्शन आप देखोगे पहले ही थी यहाँ पर, जॉली बोट हमें नहीं चाहिए,
आई वांट रिमूव इट, मैं उसके बारे में नहीं लिखना चाहती, आई एम गोइंग टू टीच अबाउट एनिमल्स। तो आपको साइंस से रिलेटेड अगर सपोज, चलिए मैं आप लिख देती हूँ कि इसमें हेडिंग इसमें देती हूँ, वाटर चेंजिंग इनटू वेपर्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा इवेपोरेशन, ओके। सो इवेपोरेशन है, राइट, एंड देन कॉन्डेंसेशन एंड ऑल। आप अपने जो थीम में आपने बच्चों को जो वोकैबुलरी नया उनको सिखाया है उससे रिलेटेड आप उसमें वर्ड क्रॉस बना के दे सकते हैं। आप वर्ड में बनाते हैं, उसमें कितना टाइम लगता है बॉक्सेस बॉक्सेस सेलेक्ट करने में, या एक्सेल में भी बनाते हैं तो इट टेक्स टाइम, बट दिस इज नॉट एट ऑल टाइम कंज्यूमिंग। यू कैन क्रिएट योर ओन वर्ड सर्च विद योर ओन वर्ड्स, ओके। You are going to save you a lot of time, and you see, bring that kind of exciting experience for your students when you will be giving them such interactive worksheets, right? Now अभी interactive बनाएंगे, इसको चलिए interactive भी बना के देखते हैं। अगर हम कहते हैं कि चलिए एक वर्कशीट लेते हैं, सपोज मेक इंटरेक्टिव, ओके, आप इसके लिए ट्यूटोरियल्स देख सकते हो, अभी मैंने कंप्लीट वर्कशीट को बनाया नहीं है, राइट। सो लेट्स सी, जब हम इंटरेक्टिव पर जाते हैं, बाकी मैंने आई हैव शेयर्ड विद यू नंबर ऑफ ऑप्शंस, यू सी। इसमें जब हम इंटरेक्टिव पर जाएंगे तो वी हैव गॉट दिस अनदर टूल बार ओवर हियर विद डिफरेंट टूल्स, कि आपको इंटरेक्टिव किसको बनाना है। यू वांट टू मेक वर्ड सर्च इंटरेक्टिव, ओके। तो उसमें आपको क्या करना है, इसमें साथ में बता रहा है कि आप उसको सिलेक्ट करेंगे, कॉलम्स एंड ऑल आप रोज सिलेक्ट कर लेंगे, उसमें से यू हैव टू चेक इट। तो इस तरीके से हर एक चीज का आपके पास ट्यूटोरियल है। मैचिंग कैसे करना है, इट इज शोइंग यू कि आप किस तरीके से कनेक्टर एक और कनेक्टर दूसरा उनको सिलेक्ट करके यू विल ड्रॉ द लाइन कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और जब बच्चे इंटरेक्टिव वर्कशीट करेंगे, हम क्या करते हैं इंटरेक्टिव वर्कशीट में, जो बच्चे मोबाइल्स पर गेम खेलते हैं, ज्वाइन करते हैं, ये किसके साथ है, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, तो ये आपके पास ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन भी रहेगा कि यू हैव टू सिलेक्ट ड्रॉप वन क्या है एंड ड्रैग वन क्या है, किसको कहाँ पर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। एंड देन चेक बॉक्सेस हैं, कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, ये आप पहले से ही वो कर देंगे। तो दिस इज हाउ इट कैन हेल्प यू मेक दिस वर्कशीट इंटरेक्टिव। तो आप अपने बच्चों के लिए इंटरेक्टिव वर्कशीट्स भी बना सकते हैं। तो प्लीज टू ट्राई इट, and obviously if you are really interested, I can take a separate session for the teachers who want to make the worksheets interactive and want to know each and every detail, like how it is to be done. You want proper hand holding. I know many of you can explore it on your own. That's why I'm not sharing each and everything related to it. I have just given you a glimpse of it, and the link for this worksheet zone will be shared in the description box below. If you really like my initiative of sharing such wonderful strategies and tips with all of you, my lovely educators, to support by liking, sharing my videos, and sharing your valuable comments in the description box below. Do share such videos in your friend circle with your colleagues also, so that you can also help them achieve the target of SDG 4 quality education. Thank you all of you. Have a nice day.